I, Manvi Saraswat, welcome you all in this fine evening where we are completing our 202nd Graduate Scholars Talk series hosted by History Society Sakshay and IQAC Internal Quality Assurance Cell. Whatever we believe about ourselves and our ability, it comes true for us. And this is true as we recently completed our 200th of our series. This platform is dedicated to fostering intellectual growth, sharing ideas, presentation skills, and engaging with a vibrant and thoughtful audience. It also provides an excellent opportunity for networking and professional development, paving the way for personal and academic growth. We take immense pride in honoring our organization's unwavering commitment to excellence and celebrating the incredible individuals who make it all possible. With gratitude for our journey so far and optimism for the future, we eagerly look forward to scaling even greater heights together. And all of the credit goes to our very hardworking moderators, Mr. Shubham Tiwari, Mr. Ajay Gupta, Mr. Saurabh Singh, Ms. Samriddhi Kanpal, Mr. Shailendra Rathore, Mr. Manthan Tarale, and by Manvi Saraswat. And to our esteemed advisor, Dr. Manish Karmarwar. Now, it's my pleasure to introduce our guest of honor for today, Professor D.C. Chaube. We are delighted to have him with us for this special event. Sir has completed his school education at Queen's Inter College and pursued higher education at Banaras Hindu University in Varanasi. His research, titled Indian Images of China, a Sino-Indian historical contact between the 18th and 20th centuries, was conducted at Rajasthan University. He is currently working as the professor and head of the department at Brihatar Bharat and Area Studies at the Indira Gandhi National Center for the Arts in New Delhi. He has also authored several books, including भारतीय संस्कृति की मूल प्रवृत्तियां और धाराएं, इतिहास के सिद्धांत एवं इतिहासकार, सन 57 की शौर्य गाथा. His research papers have been published in prominent national journals such as Itihas Darpan, Itihas Divakar, Pracharini Patrika, Jigyasa, and many more journals. An expert on the dissemination of Indian culture across Asia and its unique characteristics and legacy, he has participated as a session speaker and subject expert in numerous national and international seminars. He has also served as the scriptwriter and was in charge of the art gallery titled India, the Mother of Democracy in the New Parliament of India. Sir, we welcome you in today's event and would like your initial remarks for the program. Thank you, मनीष जी और सभी पार्टिसिपेंट्स और कन्वीन कर रही मानवी नाम है शायद जी. मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं कि आज जो हमारे ग्रूमिंग स्कॉलर्स हैं उनके बीच मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिल रहा है. पहले तो सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे आईजीएनसीए पधारें. आई वेलकम टू आईजीएनसीए टू ऑल. आई एम इनवाइटिंग यू फॉर अ गुड टी. वी विल हैव टी देयर. और मेरा डिपार्टमेंट वो भी ग्रूमिंग ही है. पहले एरिया स्टडीज के नाम से जाना जाता था. अब वो ग्रेटर इंडिया स्टडी या बृहत्तर भारत, जो इंडिया के बाहर जो हमारे लोगों ने जो काम किया है. माय डिपार्टमेंट फोकस ऑन इंडियाज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंटरेक्शन विद ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया. और लास्ट के 2000 वर्षों में जो हमारा एक इंटरेक्शन वगैरह है, जो कल्चरल या इंडियन फुटप्रिंट्स इन दीज ऑल डिस्टेंट लैंड्स, उसके ऊपर हमारा पब्लिकेशन का, रिसर्च का, प्रोजेक्ट का काम चलता है. तो आप लोग हमारे डिपार्टमेंट में आए, हमारे आईजीएनसी में आए. जनपद पर है, वो बहुत अच्छा है. कई लोग तो वहाँ घूमने भी आते हैं, सेल्फी लेने भी आते हैं. बड़ा अच्छा पॉइंट है, मनीष जी जानते ही होंगे. और इतने अच्छे विषय पर आप लोगों ने
ये टॉक अरेंज किया है, एक डायलॉग अरेंज किया है, बहुत खुशी की बात है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों की इस कन्वर्सेशन के बाद, इस डायलॉग के बाद जो कुछ होगा मैं थोड़ा-सा ऐड करूँगा, 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं। मैं तो केवल आप लोगों को सुनने के लिए आया हूँ और यंग स्कॉलर्स के बीच आया हूँ कि अभी हमारी प्रेजेंट जनरेशन क्या सोचती है इन विषयों के ऊपर, जिस विषय के ऊपर इस टॉक को रखा गया है। थैंक यू टू ऑल। Thank you so much, sir. We'll surely get back to you after the speaker's talk. So, moving forward, the Kumbh Mela is one of the largest spiritual gatherings in the world, celebrated by millions of devotees. So, let's dive into this very fascinating topic. Our esteemed speaker, Ms. Shrishti, will be sharing her insights on intangible essence of Kumbh. So, we are excited to hear her perspectives and the thought-provoking ideas she has to offer. Shrishti, the stage is all yours. Thank you so much. कुंभ पुण्य क्षेत्रानां महोत्सव श्रेयसे सर्वजनानां. A very warm good evening to everyone. I am Srishti Rana and currently I am pursuing my bachelor's degree in ancient Indian history, culture and archaeology at Banaras Hindu University. It is an absolute honor for me to share an insight about the world's largest spiritual and cultural gathering, the Kumbh. I choose Kumbh for my talk as it holds immense significance, especially the upcoming Mahakumbh, which is going to start from tomorrow, means 13 January. This event offers profound insight into human resilience and cultural diversity. Being in Banaras, a city that embodies spirituality and cultural richness, has further deepened my appreciation for such gatherings. So let's start. Intangible essence of Kumbh, a celebration of faith, spirituality, and unity. The topics which I am going to discuss, they are: what is Kumbh and why is it celebrated? Governance and the economic impacts. Shahi Snan and the Akhadas, which are the soul of Kumbh. Science behind the Kumbh and the upcoming Kumbh of 2025. कुंभ की सार्थकता. कुंभ है क्या? Kumbh is the largest religious congregation globally. It symbolizes creation, renewal and the spiritual rebirth. The word कुंभ, जो वर्ड है कुंभ, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है अमृत, जिसका मीनिंग है कलश, एक ऐसा कलश जो कि अमृत से भरा है. और ऐसा कहा भी जाता है कि जिस जगह पर कुंभ हो रहा है वो जगह एक्ट एज अ पोर्ट, और जो वाटर है उस रिवर का, दैट एक्ट एज अ अमृत. एंड इट रिप्रेजेंट्स द वomb, means a life nurturing vessel. It is also associated with the tale of Samudra Manthan. During the Kumbh, millions of devotees gather at the sacred river banks to perform rituals, especially bathing in the rivers. And it is believed that bathing in the rivers purifies sins and helps to achieve moksha. Liberation means freedom from ignorance, self realization, self actualization, and self knowledge. The event also reflects theme of cosmic creation and the spiritual transformation. प्रयागे स्नाना मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते, means प्रयाग में स्नान करने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कहा गया है ब्रह्म पुराण में. सो कुंभ, जो हम कुंभ शब्द सुनते हैं, कुंभ मेला, कुंभ एक प्रकार का नहीं है, कुंभ है 4 प्रकार का. जो सबसे पहले आता है वो होता है महाकुंभ. महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है, मीन्स इट इज अ लाइफ टाइम मोमेंट, वंस इन अ लाइफ. जिस टाइम 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं उसके बाद जो आता है दैट इज महाकुंभ, और जो होने जा रहा है 2025 में.
जो महाकुंभ है ये सिर्फ होता है प्रयागराज में, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा, यमुना एंड द सरस्वती. इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल द कुंभ. जो इससे नेक्स्ट आता है डेट इज पूर्ण कुंभ. जो पूर्ण कुंभ है ये आता है 12 साल में एक बार और अलग अलग 4 लोकेशंस पर अलग अलग 4 सालों में. तो जो 4 लोकेशंस है दे आर प्रयागराज, नेक्स्ट वन इज हरिद्वार, हरिद्वार में ये होता है रिवर गंगा पर. नेक्स्ट वन इज उज्जैन, उज्जैन में हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ द शिप्रा रिवर विच इज एसोसिएटेड विद द लॉर्ड शिवा. नेक्स्ट वन इज नासिक, नासिक में ये होता है ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर विच इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा. जो ये पूर्ण कुंभ है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, लाइक कि अगर 2000 जो लास्ट पूर्ण कुंभ हुआ है प्रयाग में वो हुआ है 2013 में, जो नेक्स्ट होने वाला है वो हो रहा है 2025 में. इसी तरीके से जैसे हरिद्वार में जो लास्ट कुंभ हुआ है वो हुआ है 2021 में एंड द अपकमिंग कुंभ विल बी हैपनिंग अराउंड 233. सो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस. और जो इसकी लोकेशन है कि किस टाइम में कुंभ कहाँ पर होगा ये डिसाइड होता है एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की हेल्प से. जो नेक्स्ट कुंभ है वो है अर्ध कुंभ. जो अर्ध कुंभ है ये होता है हर 6 साल में एक बार, मींस द हाफ वे बिटवीन 2 पूर्ण कुंभ. और जो लास्ट अर्ध कुंभ हुआ है वो हुआ है 2019 में. जो अर्ध कुंभ के बारे में सबसे खास बात है वो यह है कि ये सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है. सो इट इज अ स्मॉलर स्केल वर्जन ऑफ द पूर्ण कुंभ. नेक्स्ट वन इज माघ मेला. जो माघ मेला है ये एनुअली होने वाला फेस्ट है, एनुअली होने वाला फेस्ट है. ये मेनली प्रयागराज में ही होता है. इट इज लाइक द स्मॉलर स्केल वर्जन ऑफ द कुंभ. सो इट हैपन्स एनुअली ऑन द मंथ ऑफ जनवरी और द फेब्रुअरी, मीन्स द मंथ ऑफ माघ. नेक्स्ट आई से कि जो कुंभ है वो 4 लोकेशंस पर होता है. तो जो 4 लोकेशंस है वो डिसाइड होती कैसे हैं और ये 12 साल में ही क्यों होता है, तो इसके पीछे 2 रीजंस है. फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू द प्लैनेट जुपिटर एंड द सेकंड वन इज रिलेटेड टू द समुद्र मंथन टेल. जुपिटर जिनको बृहस्पति भी बोला जाता है, जिन्हें माना जाता है देवताओं के गुरु. तो जब जो जुपिटर प्लैनेट है उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने की सन में लगता है अराउंड 12 इयर्स का टाइम. तो डेट्स व्हाई इट इज सेड कि जब जो जुपिटर है वो अलग अलग जोडिएक साइंस में एंटर करता है तो उस टाइम पे जब वो किसी पर्टिकुलर जगह पर होता है तो लोकेशन जो है वो डिसाइड होती है कि किस टाइम पर कुंभ जो है वो कहाँ पर कंडक्ट होगा. सेकेंड वन इज रिलेटेड टू द समुद्र मंथन. समुद्र मंथन में ऐसा बोला जाता है कि जिस टाइम समुद्र मंथन हुआ और जो अमृत कलश निकला था उसको लेकर डेमन्स और गॉड्स के बीच जो फाइट हुई थी वो अराउंड 12 दिनों तक चली थी, विच इज इक्वल्स टू 12 इयर्स ऑन द अर्थ. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि जो कुंभ है वो 12 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है. सो पद्मनि नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरो गंगा द्वारे भवेद योगा कुंभ नामा तथोत्मा. मीन्स जिस समय जुपिटर जो है वो एक्वेरियस या फिर कुंभ राशि में जाता है और जो मून है और सन है वो एरिस राशि में होते हैं, उस टाइम पर जो कुंभ है वो होता है हरिद्वार में. मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योगा कुंभस्ख्याति नायके. मीन्स जिस समय जो जुपिटर है वो होता है वृषभ राशि में और जो सन और मून है वो होते हैं कैप्रिकॉन या फिर मकर राशि में, उस समय जो कुंभ है वो होता है प्रयागराज में. सिंह राशि गत सूर्य सिंह राशि बृहस्पतो गोदावर्य भवेत कुंभा जायते खलु मुक्ति ददु. अर्थात जिस समय जो जुपिटर है वो एंटर करता है लियो या फिर सिंह राशि में और जो सन और मून है वो आते हैं कैंसर में, उस समय जो कुंभ होता है वो होता है नासिक में. मेष राशि गते सूर्य सिंह राशि बृहस्पतो उज्जयिनी भवेत कुंभा सदा मुक्ति प्रदायका. मीन्स जिस समय कुंभ हो जुपिटर जो है वो होता है लियो में और जो सन और मून है वो होते हैं एरिश में, उस समय जो कुंभ है वो होता है उज्जैन में. जो कुंभ उज्जैन में होता है उसको सिंहस्था कुंभ के नाम से भी जाना जाता है. A tapestry woven through time. So as I said कि कुंभ हो रहा है, लेकिन कुंभ फर्स्ट कुंभ कहाँ हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, कब हुआ था, इसके बारे में कोई भी हमें एविडेंस नहीं मिलता है. हमें सिर्फ मिलता है कि रीजन क्या है कुंभ को सेलिब्रेट करने का.
तो जिस जो मेन रीजन है कुंभ को उन 4 लोकेशंस पर ही सेलिब्रेट करने का, वो रिलेटेड है अमृत मंथन से, समुद्र मंथन से। तो जिस टाइम पे जो डेमन्स और गॉड्स थी उनकी जो मतलब युद्ध चला था अमृत कलश को लेकर, तो बोला जाता है कि जो देवता थे उन्होंने अमृत कलश को धरती पर 4 लोकेशंस पर छिपाया था, और उसी समय कुछ अमृत की बूंदें उन लोकेशंस पर भी गिरी थी। तो जो वो लोकेशंस है दे आर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एंड नासिक। और जो ये 4 जगह हैं इनकी जो लाइक इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है, वो हमारे जितने भी पुराण्स हैं, हमारे वेद्स हैं, उनमें भी मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल इन महाभारता एंड रामायणा, महाभारता में जो संगम है उसको बोला गया है प्रायश्चित से, उसको रिलेट किया गया है। Same as with the Purans. For example, the Skand Puran and the Brahma Puran, they also signifies the significance of these places. So it is the largest religious so if I talk about like the first written evidence कौन सा मिलता है हमें कि जहाँ कुंभ लिखा है, तो जो वो हमें मिलता है it is of around 7th century by the Chinese traveler Huan Tsang. He wrote about the Kumbh at the Prayag. So we can say that yes, that was the early form of the Kumbh Mela. Moving forward, so the text like Aine Akbari, Chahar Gulshan, and the Khulsat ut Tawarik, they also mention the importance of Kumbh during that time. Moving further, the British officials like the E.B. Havel, Robert Martin, they also documented the Mela scale and the international trade presence. And after 1857, the British improved facilities and formalized the event in the 1860s. So here are some pictures. So the first one is of the first page of Prayag Snana Vidhi manuscript, which describes a complete method of bathing in the pilgrimage at Prayag. The second one is of the Ashokan pillar. इस पे मेंशन किया गया है बाय द बीरबल अराउंड 1575 अबाउट द माघ मेला एट द प्रयाग तीर्थराज. The third one is of the Haridwar Kumbh Mela of around 1850s by the English painter J.M.W. Turner. Next one, moving forward, it is governance and the economic impact. So as it is the world's largest gathering, तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? आज के टाइम में गवर्नमेंट है, बट अर्ली टाइम्स में इसको कौन ऑर्गेनाइज करता था? तो जो पहले कुंभ होता था दैट वाज नॉट दैट मच पॉपुलर और नॉट दैट मच आर लार्जेस्ट बिगेस्ट गैदरिंग. सो उस टाइम पर लाइक द saints, local rulers, and the dynasties like the Guptas and the Rajputs, they were the organizers of the Kumbh. But now the government allocates the funds to the Kumbh. For example, if we talk about the 2019 Kumbh, the government allocates 4,200 crores for the infrastructure development, and this yields 1.2 lakh crore in the economic activity, means it generates 2 lakh crore tax. It is said by the Niti Aayog and the CII, means the Confederation of Indian Industries. During the time of Kumbh, it generates jobs, boost key sectors like the hospitality sector, like the new jobs creation, tourism, and like a lots of job created during that time. And it also enhances regional publicity. It also work as a boon for the local as well as the national economy. So जो अर्ली कुंभ था हमारा, that was a localized gathering with simple with the simple infrastructure, but now it is a globally recognized event with modern infrastructure and planning while retaining its core values. If I talk about the number of people who attend the kumbh, so if I talk about the late 18th century, उस टाइम पर अराउंड 2 to 2.5 मिलियन लोग जो थे वो कुंभ अटेंड करते थे, बट 1989 आते आते जो ये नंबर है इट एग्जैजरेट, इट बिकम्स टू 15 मिलियन. और अगर आज की बात की जाए जो अभी कुंभ होने वाला है, सो अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन जो पीपल हैं वो अटेंड करने वाले हैं महाकुंभ को. So here are some graphs. The first one is of the number of people employed during Kumbh 2019. So अगर इसको देखा जाए तो around 250,000 people are employed only and only in the hospitality sector, and around 55,000 of new jobs are created during the Kumbh. The next graph shows the number of participation.
So as you can see, in 1906, only a few people attend the Kumbh. But by 2019, this number increases. And in 2025, it is going to increase very much. Here are some glimpses of the 2019 Kumbh. Kumbh and the Indian culture. So कुंभ इज हैपनिंग इन इंडिया, तो ऑब्वियसली ये कुछ इंडियन कल्चर भी शो करेगा। हम सबको पता है कि जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें जो सेंट्स हैं, साधुज हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो कितनी ज्यादा है। दे आर एक्ट एज अ पेरेंटल फिगर फॉर आवर सोसाइटी। तो कुंभ में भी ये चीज जो है वो शो होती है। तो कुंभ का जो सबसे मेन पार्ट है दैट इज शाही स्नान और द रॉयल बाथ। शाही स्नान जो है वो किन्हीं ऑस्पिशियस डेज पर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मकर संक्रांति, पोह पूर्णिमा, मौनी अमावस्या एंड द बसंत पंचमी। इस शाही स्नान के दौरान होता क्या है कि सबसे पहले जो हमारे नागा साधुस हैं वो स्नान करते हैं संगम में। आफ्टर डेट जो अखाड़ास के लोग होते हैं वो लोग उसमें स्नान करते हैं। एंड आफ्टर डेट जितने भी डिवोटीज होते हैं वो लोग स्नान करते हैं। इस टाइम पे जो अभी टाइमिंग है शाही स्नान की वो डिटरमाइन होती है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस की हेल्प से, अलाइनिंग विद स्पेसिफिक प्लेनेटरी पोजीशंस दैट आर कंसीडर्ड मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन। और शाही स्नान के टाइम पे जो घाट्स है दे बिकेम अ सी ऑफ डिवोटीज ऑन दिस सेक्रेड डेज। It is believed that transformative power of the ritual attracts not only ascetics but also the people from across the world. So as I say कि जो शाही स्नान है उससे पहले नागा साधुज और अखाड़ा के जो सेंट्स है वो लोग स्नान करते हैं। तो अभी अखाड़ा और नागा साधुज है क्या? अगर बात करूं अखाड़ा की, तो जो अखाड़ाज हैं दे वर द हिंदू मोनेस्टिक ऑर्डर्स। अगर बात की जाए कि ये स्टार्ट किसने किया है, तो ऐसा बोला जाता है कि अराउंड 8th सेंचुरी जो आदि शंकराचार्य जी थे उन्होंने अखाड़ा को स्टार्ट किया था। उस टाइम पे उन्होंने 7 जो अखाड़ा थे उनकी स्थापना की थी। दे आर महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना, अटल, आवाहन, अग्नि एंड द आनंद अखाड़ा। सो दे वर द सबसे ओल्डेस्ट जो अखाड़ाज हैं वो यही हैं। सो अखाड़ाज जो है वो हिंदू मोनेस्टिक ऑर्डर्स हैं विच आर एंशियंट इंस्टीट्यूशंस जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ एसेटिक्स को। जो अखाड़ाज है उन्हें बोला जाता है कस्टोडियन ऑफ द हिंदू स्पिरिचुअल एंड मोनेस्टिक ट्रेडिशन। दे प्ले अ सेंट्रल रोल इन द कुंभ मेला। सो बेसिकली अगर बात की जाए उस टाइम पर 7 थे, लेकिन आज के टाइम पे जो अखाड़ा है वो 13 हो चुके हैं और ये फर्दर डिवाइडेड है लाइक वैश्वनेत, शैवियत एंड द उदासीन सेक्ट। जो वैश्वनेत हैं दे आर द फॉलोवर्स ऑफ द लॉर्ड विष्णु। सो जो मेजर वैश्वनेत अखाड़ा से देवर निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा एंड द निर्वाणी अखाड़ा। बात की जाए शैवियत अखाड़ा की, तो उस देवर द फॉलोवर्स ऑफ द लॉर्ड शिवा। तो उसके अंदर आते हैं जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा के ही अंदर आता है हमारा किन्नर अखाड़ा। नेक्स्ट वन इज निरंजनी अखाड़ा एंड द महानिर्वाणी अखाड़ा। एंड मूविंग फर्दर द उदयसीन ऑर्डर्स, देव इसके अंदर जो देवर्दी एशियाटिक ऑर्डर्स, इनके जो इसके अंदर अखाड़ा जाते हैं देवर्दी बड़ा उदयसीन अखाड़ा, नया उदयसीन अखाड़ा एंड द निर्मल अखाड़ा। तो एज आई सेड नागा साधुस पहले स्नान करते हैं। तो जो नागा साधुस हैं अब ये कौन होते हैं? तो जो नागा साधुस है ऐसा बोला जाता है कि ये थ्रू आउट द कहीं पर हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुंभ ये हमें दिखते हैं, मतलब ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जो नागा साधुस है दे लिव इन द हिमालयस एट दैट टाइम। तो नागा साधुस जो हैं दे वर द एशियाटिक वॉरियर्स who are known for their extreme austerity, nudity, and the dedication to spiritual practices. They are the most visible and iconic figures of the Kumbh. If I talk about the history of the Naga sadhus, so they were known to be warriors who protected Hindu pilgrims and holy sites during the time of war or invasion. They lead the Shahi Snan procession, and during that time, they mounted on horses or elephants carrying flags, tridents, and other religious symbols. The procession to the river bank for the holy bath is one of the most anticipated and visual striking movement of the Mela. It's showcasing the grandeur and tradition of India's Asiatic heritage. So yes, if I say कि अखाड़ास और नागा साधु सोल हैं हमारे कुंभ की, तो ये गलत नहीं होगा। So here are some pictures of the Naga sadhus and the akhadas. So
अभी कुंभ अगर इंडिया में हो रहा है तो क्वेश्चन आता है कि सिर्फ क्या इंडियंस ही इसमें आएंगे या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्ट आता है या क्या, या सिर्फ साधु संत ही आते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। कुंभ इज अ फेस्ट ऑफ एवरीवन। इसमें इंडियन से लेके फॉरेनर तक, इम्प्रोवाइज सेक्शन से लेके रिच तक, यंग से लेके ओल्ड तक, एवरीवन इज द पार्ट ऑफ कुंभ। तो इसमें हर जगह से, हर कोने से वर्ल्ड के लोग आते हैं। अगर बात की जाए इस बार के कुंभ की, तो अगर बात की जाए इस बार के कुंभ की भी, तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। तो जो कुंभ है वो अट्रैक्ट करता है ग्लोबल पिलग्रिम्स को, लाइक फ्रॉम every part of the world. So जो foreigners are like those who are interested in yoga, meditation and the Eastern philosophies, they came to the Kumbh to witness this divine confluence. And this promotes spiritual exchange and the mutual respect. Like the foreigners who are coming from other country, from other background, they are coming to the India so they can witness the heritage of India, the culture of India, so they can learn about India and its richness. इसी को देखते हुए इन 2017 यूनेस्को ने ऐड किया है कुंभ को इन इट्स इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में भी। सो यस, इट इज अ प्राउड ऑफ इंडिया। सो और इसी के साथ साथ जो कुंभ है वो रिफ्लेक्ट करता है हिंदुइज्म बिलीफ इन ट्रांसीडिंग वर्ल्डली डिस्टिंक्शन ओनर्स। और इसी के साथ साथ जो कुंभ है इट ओनर्स सेक्रेड रिवर्स एंड शेयर वैश्वनीत एंड द शैवियत टीचिंग्स। बिकॉज यस, वहाँ पे शैवियत भी आ रहे हैं, वैश्वनीत भी आ रहे हैं, तो दे बोथ गेट, तो वो उनकी जो टीचिंग्स है उसका जो है वहाँ पे एक्सचेंज भी होता है। सो यस, इट सिंबलाइजेस इंडियाज कल्चरल यूनिटी एंड ब्रिजेस सोसाइटियल डिवाइड्स। जिन रीजंस की वजह से जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो जाती है, वो सब कुछ कुंभ में जाके फिर से एक हो जाता है। स्पिरिचुअल क्लींसिंग एंड द कॉस्मिक कनेक्शन। तो अभी क्वेश्चन आता है कि जो लोकेशंस है कुंभ की, लाइक वो 4 लोकेशंस ही क्यों, वो पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट ही क्यों, प्लेनेट जुपिटर ही क्यों? तो इसका भी रीजन है। और क्या सिर्फ गंगा में स्नान करने से सिर्फ क्या पापों से मुक्ति होती है? बिल्कुल। सो बाथिंग इन द गंगा ये सिंबलाइज क्या करता है? स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, प्रमोटिंग विटलिटी एंड कनेक्शन विद द डिवाइन। इसी के साथ साथ द न्यूट्रिएंट रिच वाटर, क्योंकि जो रिवर है वो फ्लो होके आ रही है कहीं माउंटेन से काफी, तो उसके अंदर जो हर्ब्स की मतलब लाइक क्वालिटीज है वो आ जाती है, तो इट इम्प्रूव सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, रिलैक्सेस द बॉडी एंड ऑफर्स हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो। प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स लाइक पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग जुपिटर, इसका एक रीजन भी है कि ये इन्फ्लुएंस करता है अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को और एनहेंस करता है ह्यूमन वेलबींग को। जो कुंभ की जो साइट्स हैं वो इसलिए चूज की गई हैं क्योंकि उनका जो जियोमैग्नेटिक एनर्जी है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग which fosters spiritual growth. So that was the main reason why the location and the Jupiter is chosen for the Kumbh. The festival combines these elements. ये highlight करता है humanity connection to the cosmos, especially during the 2025 Mahakumbh. 2025 का प्रयाग का जो महाकुंभ होने जा रहा है फ्रॉम 13 जनवरी टू 26 फरवरी। सो ये शेड्यूल हुआ है फ्रॉम जनवरी 13 टू फरवरी 26 इन 2025। लोकेशन जो है वो है इसका प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। और इसमें ऐसा बोला जा रहा है, लाइक एस्टिमेटेड है कि अराउंड 400 मिलियन जो पिलग्रिम्स है वो आने वाले हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल गैदरिंग। इसी के साथ साथ जो इसका मेन एस्पेक्ट डेट इज शाही स्नान और द रॉयल बाथ, उसके लिए जो डेट्स है डेट आर दीज आर मकर संक्रांति ऑन 14 जैन, मौनी अमावस्या ऑन 29 जैन, बसंत पंचमी ऑन 3rd Feb एंड द लास्ट वन इज ऑन 26 Feb ऑन द फेस्टिवल ऑफ महाशिवरात्रि। अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो इसमें डेवलप किया गया है डोम सिटी विद 176 मॉडर्न कॉटेजेस फॉर अकोमोडेशन, एनहेंस फॉर सैनिटेशन के लिए इसमें लगाए गए हैं अराउंड 500 गंगा प्रहारीज और द वॉलंटियर्स। इसी के साथ साथ जिस एरिया में कुंभ कंडक्ट होना है उस एरिया को एक टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है विच कवर्स 66 विलेजेस एंड 4 तहसील्स फॉर इफिशिएंट मैनेजमेंट।
इसी के साथ साथ अगर बात की जाए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की देखी जाए या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे एक्सटेंसिवली एनडीआरएफ ड्रिल्स हो रही हैं, एडवांस फायर फाइटर्स मौजूद हैं। सो ऐसा लाइक फॉर सेफ्टी रीजंस के लिए भी वहाँ पर जो है मैनेजमेंट किया गया है। साथ ही साथ 407 डॉक्टर्स एंड 700 पैरामेडिकल स्टाफ स्टेशन फॉर द मेडिकल इमरजेंसीज। विद दिस अगर बात की जाए कि ट्रैवलिंग के लिए क्या है, तो अराउंड 13,000 ट्रेन्स इंक्लूडिंग 3,000 स्पेशल ट्रेन्स, upgraded station and digital services for the smooth travel. With this, improved connectivity and digital services to support attendees to ensure a safe, comfortable and well organized experience for millions of pilgrims. So yes, इस बार जो कुंभ महाकुंभ होने जा रहा है उसके लिए तैयारियां भी बहुत महा ही की गई हैं, अगर ऐसा बोला जाए तो। सो यस, नाउ वी कैन से कि कुंभ जो है वो सेलिब्रेशन है फेथ का, कल्चर का, स्पिरिचुअलिटी का, जो ऑफर करता है अ पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड अ डीपर कनेक्शन विद द डिवाइन। इसी के साथ साथ इट इज अ जर्नी ऑफ सेल्फ, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ कल्चर, इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी, सेलिब्रेशन ऑफ हिस्ट्री, सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन। जो कुंभ है वो सेलिब्रेट करता है इंडिया की रिच हेरिटेज को एंड इट ऑल्सो फोस्टर्स नेशनल यूनिटी। ये बूस्ट करता है टूरिज्म को, जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट एंड ड्राइव्स रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। It improved facilities, better connectivity, and efficient management have enhanced international recognition. Issues like river pollution and waste management highlights the need for a sustainable practice, but despite all the challenges, the Kumbh Mela showcases India's ability to blend tradition and modernity, fostering collective spiritual and pride. तो अगर ऐसा बोला जाए कि जो कुंभ है वो इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, कल्चरली हर एस्पेक्ट से इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये गलत नहीं होगा। यत्र तीर्थेषु महानि सर्वेषु तु कुंभकाले स्नानम कुर्यात प्रत्यनेन सर्व पाप विनाशनम। अर्थात at the time of the Kumbh Mela, one should make a sincere effort to bathe in the great holy places, as this act destroys all the sins. धन्यवाद। Thank you so much, Srishti. As you can see from the reactions also, it was really a very engaging and insightful presentation. So, before we move towards the questioning round, some of the teachers from Speaker School, that is PM Shri School Jawahar Navodaya Vidyalaya, some of the teachers have also joined. So, I want to thank each one of them for joining. Mr. Vipin sir from History, Mr. Manoj sir from Geography, Mr. Sonu from Economics Department, and Mr. Atal Bihari Pandey from Art Department have also joined. Thank you so much, everyone. And the principal, Mr. Surendra Singh Shekhawat, he has also joined. Thank you all for appreciating our platform and appreciating the speaker as well. Thank you so much, everyone. Now, as we open the floor for questions, so the first question is from Mr. Abhinav. He is asking, as you described, like Shaivite, Shakti, and Vaishnavism, it directly relates with Kumbh. Do you find any role of other sects like Jainism, Buddhism, Parsi, or any other community other than Hindu in Kumbh Melas? You are muted. तो अगर बात की जाए कि क्या दूसरे जो सेक्ट्स है क्या वो भी कुंभ को मानते हैं, तो बात आती है कि डायरेक्टली तो कोई भी लाइक डायरेक्ट रिलेशन जो है वो सिर्फ हिंदुइज्म का ही है कुंभ से, क्योंकि वो ही इस चीज में बिलीव करते हैं। क्योंकि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें जो रिवर में बात करने से मोक्ष मिलता है, इस बात को डिनाई किया गया बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। तो डायरेक्टली तो वो कोई लिंक नहीं करता है इससे, लेकिन बट इट एज इट इज हैपनिंग इन इंडिया, सो यस उस बिहाफ से रिलेट कर सकता है, बट डायरेक्टली लाइक बुद्धिज्म या जैनिज्म किसी से रिलेट नहीं करता है। Okay. But yes, if they want to like engage in the spiritual practices or want to know about the something for peace of mind or something other than the religious aspect, so yes they can engage in the kumbh also.
but not directly or from that perspective. Okay, very well answered. The next question is from Samriddhi. She's asking, what role do media and technology play in shaping the experience of the Kumbh Mela for pilgrims and the wider public? So, like अगर बात की जाए एंशियंट कुंभ की, उसमें जो लोगों का नंबर ऑफ पीपल थे वो कम क्यों थे? इसका रीजन यही तो है कि क्योंकि उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास सर्विसेज नहीं थी वो प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास है। अगर आप वहां पे खुद जाके विटनेस नहीं कर पा रहे हो कुंभ को, तो आप घर बैठे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसको यहीं से एक्सपीरियंस कर सकते हो, यहीं से देख सकते हो, यहीं से जान सकते हो कि कुंभ है क्या। अगर बात की जाए एआई की, तो इस बार जो कुंभ होने जा रहा है 2025 में, उसमें भी एआई काफी ज्यादा हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल, उसके लिए एक अलग से ऐप लॉन्च किया गया है जो कि हेल्प करेगा फॉर द पिलग्रिम्स कि कहाँ पर किस टाइम पर कितना क्राउड है, उससे उनको हेल्प होगी। तो यस, इट इज कि जो टेक्नोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट है कुंभ के लिए। उसकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा ईजी हो गया है कुंभ को सेलिब्रेट करने में या इतने बड़े क्राउड को मैनेज करने के लिए। साथ ही साथ कि टेक्नोलॉजी है क्योंकि हमारे पास, तो कैमरास हो गया, फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, या किस टाइम पे कितने लोगों को कहाँ भेजना है, लोकेशन पे कितना क्राउड है, तो वो सब जानने में बहुत ज्यादा इजी होता है। और लोग आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है एरिया का कि कहाँ पर क्या चीज मिलेगी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो भी बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो टेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है कुंभ में बहुत बड़ा, और आज के टाइम में तो ज्यादा करती है। Yes, Shrishti, your answer was totally correct. I totally agree with this. So thank you so much. That was from the audience side, but we do also have one question for you. So please describe your experience with GSTS team and with our platform. सबसे जीएसटीएस को मैं बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ आके अपना टॉक दे सकूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। और जीएसटीएस के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, डेट वाज बेस्ट। साथ ही साथ जो मनीष सर हैं, उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा, टॉक रही है, डेट वाज वन ऑफ द बेस्ट। और साथ ही साथ जो मेरी प्रेजेंटेशन में या मेरे को इम्प्रूव करने में कि कहाँ पे कैसा बोलना है, कैसे कर सकती हो, इस सब के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी अंकित सर को, क्योंकि उन्होंने पूरी इस जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है। उन्होंने ही बताया कि कैसे बोल सकती हो तुम या कैसे कर सकती हो उसके लिए। और पूरी टीम को जीएसटीएस की मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जब भी किसी को टेक्स्ट किया कि मुझे ये जानना है या कुछ भी, तो दे आर मैंने बोला कि मैं नहीं दे पाऊंगी इस दिन टॉक, तो तब भी वो लोग वहां पे थे। तो थैंक यू जीएसटीएस एंड द मनीष सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Shrishti, and please stay connected with us. Now, श्योर। thank you so much. Now, I would like to invite our guest of honor for his remarks on the topic and about our platform as well. थैंक यू। मनीष मनीष जी कुछ नहीं बोलेंगे क्या कुंभ के बारे में? मनीष वो जी का सर, भी नहीं वो बोलेंगे सर सबसे आखिर में सर, क्योंकि मैंने अब अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर ठीक है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और सृष्टि का जो प्रेजेंटेशन है बहुत आउटस्टैंडिंग है, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने इसकी तैयारी की होगी निश्चित तौर पे। और जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन अपने को दिया है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया है। और वर्तमान पीढ़ी को जानना चाहिए कि हमारे जो, मेरी आवाज आ रही है? परफेक्टली सर, परफेक्टली। जी, थैंक यू, थैंक यू। तो वर्तमान पीढ़ी को, और मनीष जी ने जिस प्रकार से एक यंग टैलेंट को इस कुंभ जैसे ट्रेडिशनल फेयर को या एक इवेंट को जो सदियों से चला आ रहा है उसको प्रेजेंट करने के लिए सृष्टि जैसे एक ग्रूमिंग स्कॉलर को इनवाइट किया, तो एक टीचर का अब इससे बड़ा अच्छा रोल और क्या हो सकता है कि वो अपने सामने ही अपने उस स्कॉलर को ट्रेन करे और उसको प्रेजेंट भी करे। तो बिल्कुल ही एक अच्छा ये मॉड्यूल है स्कॉलर को, टैलेंट को प्रमोट करने का, और भारत की परंपरा से, भारत के फेयर एंड फेस्टिवल से जोड़ने का। और सृष्टि ने जैसा कि सारे पक्षों को टच किया है,
और बहुत ही अच्छे से टच किया है। बस 2-3 बातें मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अभी कुंभ मेला लग रहा था, तो उससे पहले प्रयाग को एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक नगर के रूप में डेवलप करने का एक यूपी सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, और जो प्रोजेक्ट का जो वेंडर था वो हमारे एजेंसी से जुड़ा हुआ है। तो उसके सारे क्रॉस रोड को, सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को उसने अपने आर्ट वर्क से उसको इनरिच किया है, उस प्रयाग को। बहुत से ऐसे तो उसमें मैं भी उसके स्क्रिप्ट राइटर था मैं, तो मुझे लगा कि ये कुंभ की ही तैयारी चल रही होगी, और यूपी सरकार ने वेंडर को हायर किया है कि अब चूंकि इलाहाबाद से प्रयाग के रूप में इसका रूपांतरण हुआ है, तो प्रयाग का एक जो हिस्टोरिकल कल्चरल एक जो इंटाइटी है, जो आइडेंटिटी है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए यूपी सरकार ने ऐसा कुछ किया होगा। जहां तक इसको हिस्टोसिटी की बात है, सृष्टि ने बताई है कि वेनसांग जो अपना चाइनीज ट्रेवलर है, मेरा तो इंडिया चैनल पर काम ही है सारा, तो वेनसांग ने इसकी चर्चा की है। वेनसांग, सृष्टि आपको मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि वेनसांग कहता है कि ये उसको महामोक्ष परिषद कहता है उसको, कि राजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष आता है यहाँ पे। दिस इज 6th महामोक्ष परिषद अरेंज्ड बाय दिस ग्रेट एम्परर हर्षवर्धन, ऐसे करके उसने अपने जीवनी में लिखा है। तो छठा था, इसका मतलब उससे पहले भी 5 में राजा हर्षवर्धन आया था। और हर्षचरित में बाणभट्ट लिखते हैं कि राजा हर्षवर्धन 5 वर्ष बाद उसी प्रकार से इस महामोक्ष परिषद, इस प्रयाग के संगम पर आता था, जैसे बादल 8 महीने जल को सोखते हैं और 4 माह उसको वर्षा के रूप में धरती को अर्पित करते हैं। तो राजा 5 वर्ष तक तमाम प्रकार के संसाधनों को इकट्ठा करता था, धन को इकट्ठा करता था, और आ करके यहाँ पे जितने गरीब, वंचित, जितने साधु सन्यासी जो उसके ऊपर आश्रित हो सकते हैं, वो सबको दे देता था। छठे उस महामोक्ष परिषद में ये हुआ कि राजा ने दान करते 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 उसने सब कुछ दे दिया, और इवन अपने शरीर के ऊपर का वस्त्र भी दान कर दिया सन्यासियों को और वंचितों को। और बहन राजश्री उसकी बहन थी राजा हर्षवर्धन की, और राजश्री से कपड़े मांग करके उसको धारण करके फिर वो कन्नौज लौटा। कन्नौज उस समय राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। आप देखेंगे कि प्रयाग बड़ा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जहां पे अशोका अभिलेख है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है जिसको हरिशेन ने लिखा है, और हरिशेन ने इस संगम पर इस मेले की चर्चा की है। उसके बाद चूंकि सबसे बड़ा गैदरिंग था भारत के अंदर, तो 1582 में इन 1582 जब अकबर ने नया धर्म चलाने की सोची, दीन इलाही, तो प्रयाग के संगम पे ही उसने उस धर्म को लोगों के सामने रखा कि इस प्रकार का एक धर्म लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं। हालांकि उसका दीन इलाही ज्यादा चला नहीं, लेकिन ये गैदरिंग बहुत पुरानी है, ये बहुत बड़ी है। कुंभ क्यों लगता है, इसका छोटा सा एक मुझे ध्यान है कि गरुड़ और सर्पों में लड़ाई हुई, सर्पों ने उनकी मां विनीता को मार डाला, और विनीता को जीवित करना था गरुड़ को, तो अपनी मां को जीवित करने के लिए अमृत का कलश लेकर के भागे वहां से कहीं से। अब पूरी बात मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं इसको रिकॉल करूंगा कभी। तो उस कलश को लेकर के भागते थे, सर्प राक्षस घेर लेते थे, फिर फाइट होती थी। तो जहां जहां फाइट हुई, तो फाइट करेंगे तो कलश को, उस अमृत कुंभ को रख करके ही कहीं लड़ाई होगी। जहां जहां वो अमृत कुंभ रखते थे, तो अमृत का थोड़ा सा हिस्सा छलक के गिर जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि वहां पे ये कुंभ मतलब मनाया जाता है। और राजा हर्षवर्धन के कारण से, और ये संगम तो भारतीय जीवन संस्कृति में, परंपरा में ऐसे बसा हुआ है कि बड़े बड़े ऋषियों का आश्रम है। आप रामायण पढ़ेंगे वहां संगम की चर्चा होगी, आप महाभारत पढ़ेंगे वहां ये विनीता और गरुड़ की जो सर्प, मतलब विनीता पुत्र गरुड़ की और सर्प की जो लड़ाई है, महाभारत में ये कहानी है, ये कथा है महाभारत में। सूर्य मंथन की भी कथा महाभारत में आदि पर्व में है। तो ये संगम बहुत ही, और 3 नदियों का संगम माना जाता है। 3 नदियों का, जैसे कि यमुना गंगा तो दिखती हैं, और ऐसा माना जाता है कि सरस्वती भी जमुना में मिल गई थी। कोई टेक्टोनिक चेंज हुआ और नदी समाप्त हो गई, उस नदी का जल
यमुना में गिर गया, क्योंकि सरस्वती और यमुना का जो ओरिजिन है, उद्गम है, एक ही प्लेस पर है। तो ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि वो नदी का जल गिर गया तो यमुना सरस्वती का जल लेकर के संगम पे आती है, वहां से गंगा से मिलती हैं, 3 नदियों का संगम है। और हमारे जीवन का अब एक इसमें छोटा सा प्रश्न आया था मनीष जी, कि एक मैम ने कोई पूछा था कि महिलाओं की इसमें क्या भूमिका है। तो उसके ऊपर मैं अब ज्यादा ये बोलने का अवसर नहीं है, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। जो कल्पवास नामक जो वहां पे एक जो तपश्चर्या होती है, वहां पे कल्पवास 1 महीने का, उसमें हमारी माँ, हमारी सास, हमारी दादी, तो उसमें कल्पवास में 70% महिलाएं ही करती हैं उस कल्पवास को। तो ये कहना कि महिलाओं के लिए क्या है या फिर महिलाओं का क्या इसमें रोल है, भारत की संस्कृति में भारत का कोई भी रिचुअल, भारत का कोई भी यज्ञ, कोई भी सेक्रीफिस विदाउट महिला संपन्न होता ही नहीं। वो माता स्त्री तो वो संस्कृति की प्रतीक है। तो ये भूमिका सबकी है, सबकी भूमिका है, छोटा बड़ा, वंचित धनी अमीर, इसमें कोई नहीं है। ये महाकुंभ है, हर प्रकार का महाकुंभ है, संगम है, लोगों का मेला है। भारत मेलों का देश है, त्योहारों का देश है। और ये चूंकि साउथ ईस्ट एशिया में जानता, पढ़ाता, रिसर्च करता हूँ, साउथ ईस्ट एशिया में भी कुंभ होता है। मकर संक्रांति के समय ये उत्सव वहां भी होता है। आप थाईलैंड में चलाइए, कंबोडिया में चलाइए, किसी न किसी रूप में ये गंगा स्नान, नदी स्नान, मेकोंग जो है, मेकोंग शब्द माँ गंगा का ही नाम मेकोंग है। जो मेकोंग भी हिमालय से निकल करके बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया होकर के बहती हैं, तो मेकोंग माँ गंगा ही बोलते हैं उसको वहां भी। तो ये भारत की परंपरा है, वर्तमान पीढ़ी को जानना चाहिए। और मनीष जी ने इतना अच्छा टॉक, और सृष्टि को आउटस्टैंडिंग स्पीकर के रूप में मैं, और हमारे एजेंसी आइए, इंटर्न के रूप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं, मास्टर किसी ने किया हो तो रिसर्च असिस्टेंट के रूप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वी ऑल विल सर्च द इंडियन footprints in the whole Asia, in Southeast Asia, East Asia and West Asia. You may join IGNCA. You are all welcome to IGNCA. और मनीष जी को मैं स्पेशल इनवाइट करता हूं कि आप आए, हमारे साथ चाय पिए, लंच करें, कुछ बातें करें और आगे अपन मिलके क्या कर सकते हैं। मैं तो इस टॉक में आने का इसको अवसर के रूप में ही ले रहा हूं कि आप लोगों से मिलने का, 2-3 बातें करने का मुझे अवसर मिला। और बहुत अच्छी, मतलब अच्छी टॉक है, अच्छा विषय है और अच्छा प्रेजेंटेशन है और अच्छा कन्वीनरशिप में इसका समन्वय अच्छा है, इसका संयोजन अच्छा है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। Now I invite principal of Srishti College, principal of Srishti College, Dr. S.S. Shekhawat. Sir, the floor is yours because she is your student. So definitely, sir. Good evening, all of you. Good evening. सर, मैं आज कहीं बाहर गया हुआ था, रास्ते में ही था, लेकिन फिर भी मैंने ये अटेंड किया। और सृष्टि हमारे स्कूल से ही पास आउट होके गई है, एक अच्छी बच्ची है। यहाँ भी अच्छी तरह से अपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती थी और इसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और भविष्य में भी आप इस तरह के प्रोग्राम आशा आयोजित करते रहेंगे और जब कभी भी मौका मिलेगा तो हम भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। सर शेखावत सर, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस 202 टॉक है, कॉन्टिन्यूअस एवरी संडे। दिस इज द 202nd टॉक। ओके सर, संडे। बधाई हो सर। सर से इनको एक्सपोजर मिलता है बोलने का। यस। तो ये अच्छा आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, इसको ऐसे ही कायम रखिए। थैंक यू। ओवर टू यू मानवी, ओवर टू यू मानवी। Thank you so much, sir, for joining, and thank you so much to our guest of honor, sir. आपने जो stories बताई, जो कहानी हमारे साथ share करी, truly they made an impact on us. Seriously, your insights and encouragement, it means so much to all of us. We are truly grateful for your support. और सॉरी मनीष जी, एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे इस कुंभ में इसके पार्टिसिपेंट्स आप सभी जाएंगे, उसको देखेंगे, और मैं तो जाऊंगा ही। तो बस स्पेशल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कुंभ को आप लोग भी देखें। धन्यवाद।
Thank you so much, sir. Surely, sir, we will attend the event. Thank you so much, sir. Now we'll move forward, and I would like to invite a speaker for next week, Ms. Ratna, to give a brief about her topic. One minute, Ratna. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Don't search the button. I'll No, give no, you Ratna, you can permission. speak now. Yeah. Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. My name is Ratna. Um, अभी नेक्स्ट संडे को मेरा टॉपिक होगा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ब्रेकिंग द स्टिग्मा इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मैं इसके अंदर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज के टाइम पे जब एआई और इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो जो बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से लोग अकेले भी पड़ गए हैं। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, किसी चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो, स्कूल के स्टूडेंट हो, या किसी भी चीज में काम कर रहे हो, तो उन्हें अकेले रहकर काम करना पड़ता है। तो उस अकेले रहने की वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है, जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो लोग इस अकेलेपन में झेल रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे जब जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याएं भी फेस करनी पड़ रही हैं। तो नेक्स्ट संडे का जो मेरा टॉपिक होगा वो इसी पे होगा कि हम कैसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ला सकते हैं और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके अंदर कैसे बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मेंटल हेल्थ क्या होता है, हम उसे कैसे समझ सकते हैं, ये एक स्टिग्मा है जिसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे इन सब से बाहर निकल सकते हैं। देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं इन सब जो एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रोमास वगैरह होते हैं उन्हें आपस में शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता जहां पर वो आपस में बातचीत कर सके। अकेले रहने की वजह से वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हैं और ना ही उनके पास इतनी अवेयरनेस होती है कि वो डॉक्टर्स के पास कंसल्ट कर सके या किसी साइकेट्रिस्ट वगैरह के पास जा सकें। तो इसी की चीज के बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं, और इन सब के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इन स्टिग्मास को तोड़ने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज वगैरह ला सकते हैं और क्या हमारा डेटा रहेगा, जैसे बेसिस पर हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की हमें आवश्यकता है। और इसी के साथ बस मैं यही बताना चाहूंगी कि कुछ जैसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं या कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि जो समस्याएं आज के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के टाइम पे कॉलेज में हो, स्टूडेंट्स में हो, उन सब समस्याओं को फेस करते हुए कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या इसके स्टेप्स हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ज्वाइन एंड हेल्प अस सो दैट वी कैन जो हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं वो सभी लोगों तक आराम से पहुंच सके। तो आप सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया अगले टॉक में आए। थैंक यू। Thank you so much, Ratna. Truly, the topic is need of the hour. And please join us next Sunday for her topic, which is mental health awareness, breaking the stigma in educational institutions. Now, there are some of the teachers that have joined from the speaker school. I would like to invite them. Vipin sir, if you are here, please share your insights with us. Or anyone else from the school. Hello. Hello. Good evening, sir. Good evening, ma'am, and good evening to all. आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं सोनू कुमार, इकोनॉमिक्स टीचर हूँ JNV यमुनानगर में। मैंने भी सृष्टि को पढ़ाया है और सृष्टि के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। शी हैज द एबिलिटी टू ग्रेस्प the things very rapidly, very fastly। और वो जो
कोई भी जो टॉपिक है उसमें अपनी सोच को भी शामिल कर लेती है और तब प्रेजेंट करती है। आज आप सबने देखा होगा कि उसने कितने काम तरीके से इस टॉपिक को प्रेजेंट किया और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। मेरी शुभकामनाएं सृष्टि के साथ हैं। वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, आगे वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाइयां हासिल करे। थैंक यू सृष्टि फॉर बीइंग माय स्टूडेंट। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। Thank you so much, sir. Any more teachers who want to say something here from PM Shri School? Any teachers, if they want to share their insights, they are most welcome here. Yeah, then Vipin sir can. Okay, Vipin sir. हेलो, हाँ जी सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सभी को गुड इवनिंग। गुड हेलो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। जो प्रेजेंटेशन सृष्टि ने दी उसमें तो हमारी नॉलेज बड़ी एनहेंस हुई है, तो मैं सृष्टि को इस चीज के लिए मुबारकबाद दूंगा कि सृष्टि ने इस प्रकार से जो हमारी कुंभ मेले की जो अमूर्त संस्कृति विरासत है उसके बारे में बताया। देखो, हमारा ये जो कुंभ मेला है ये एक ऐसा आयोजन है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। इतना ही नहीं, ये हमारे खगोल विज्ञान के ज्ञान को भी दर्शाता है। वरना आज के डे अगर हम आज देखें तो एडवांस टेक्नोलॉजी में हम ये चीज जान रहे हैं, वहीं हमारे प्राचीन ऋषि मुनि देखिए कि बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के कितना ज्योतिष विज्ञान और खगोल विज्ञान को जानते थे। तो कुंभ मेला इसका एक उदाहरण है। वही गुरु शिष्य परंपरा का भी एक उदाहरण है। अगर आप देखें, ये जो अखाड़े हैं, ये जो सन्यासी हैं, ये जो आते हैं गुरु शिष्य परंपरा लेकर आते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप ये जो 202, ये अभी आप शेखावत सर को बता रहे थे कि ये 202 नंबर है, 202 रोज संडे को शायद होता है। हेलो हेलो सर, हाँ हम जी। हम हाँ सुन जी रहे हैं सर। सर। हम यहाँ पे सुनते अधिक हैं, बोलते कम है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो बहुत बढ़िया है सर, मैं पहली बार देखा है, पहली बार ज्वाइन किया। आप जैसे विद्वानों से भी मुलाकात हुई है, आपके विचारों को जाना है, तो खुशी है कि हमारी एक शिष्या जो है इस तरह के कार्यक्रमों में जो हिस्सा ले रही है। और ज्ञान तो सर सब जगह से ले लेना चाहिए। तो मेरी तो बहुत ये नॉलेज भी बहुत ज्यादा एनहेंस हुई है। तो थैंक यू वेरी मच। और मेरा आशीर्वाद है इन बच्चों के लिए कि ये आगे और ये तरक्की करें और कामयाब ही हों। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ज्वाइन करवाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Thank you to all the teachers for joining us today. To all the school teachers from Shrishti School, you truly, आपने बताया कि how much importance the school teachers carry. So as we near the end of this session, I want to take a moment to extend our heartfelt gratitude. All of the audience thoughtful contributions. It has greatly inspired and enhanced the experience for all of us. To our teachers, your support and engagement, they are the bedrock of our motivation. Thank you for guiding us and instilling in us the confidence to chase our goals with greater dedication. To conclude, I would like to invite Dr. Manish sir for a vote of thanks. Thank you, Manvi. So I have left only 60 seconds, but it's a really enriching moment. But I would like to call one professor from my previous college, Professor Ila Bhusan. Ma'am, if you are here, kindly say a few words from the college. Yeah, ma'am. And after that, I'll give my. थैंक यू सो मच मनीष जी। आज का जो टाइमिंग रहा आपका इस टॉक का, इससे परफेक्ट टाइमिंग हो नहीं सकता था।
और जो कुंभ वर्ड था उसने मेरे को एकदम मैग्नेट की तरह खींचा, क्योंकि हम लोग अब तक कुंभ के बारे में थोड़ा बहुत ऑन ऑफ देखते रहे, लेकिन आज जो सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन सुनने को मिली उससे मन में ये आ रहा है कि भाई अभी कल कुछ पकड़ा जाए और कुंभ पहुंच जाया जाए। तो इतना ज्यादा एक मैजिकल इम्पैक्ट रहा सृष्टि की प्रेजेंटेशन का। और सृष्टि से मुझे पूर्ण कुंभ के बारे में कुछ पूछना भी था, लेकिन अभी मनीष जी बोले हैं कि बहुत कम टाइम बचा है, तो किसी और दिन। और मनीष जी, सृष्टि की पीपीटी आप जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा। बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन, और मुझे अफसोस भी है कि बीच के बहुत सारे एपिसोड्स मेरे मिस हुए। तो एक अपराध बोध भी है कि इस बीच में मैंने बहुत कुछ खोया, बट नाउ आई विल ट्राई टू कनेक्ट रेगुलरली। और 202 एपिसोड पूरा करने के लिए टीम को, मनीष जी को, और जो हमारे स्पीकर्स रहे उन सबको मेरी दिल से शुभकामनाएं। और मनीष जी की एक खासियत रही जिसको मैं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म से एक्नॉलेज करना चाहूंगी, कि मैं बहुत लंबे समय तक जुड़ नहीं पाई, लेकिन उसके बावजूद मनीष जी का जो इनविटेशन था वो मेरे पास आता रहा। तो मुझे ये तो पता चलता रहा कि हम किस विषय पे बात करने वाले हैं, और आज उसी स्पिरिट की वजह से देखिए मैं आपको जुड़ पाई, मैं सुन पाई। मनीष जी, दिल से मेरा आभार आपके लिए। और इस हमारे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करेंगे कि ये अनवरत चलता रहेगा। हम इसके लिए कोई लिमिट सेट ही नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। थैंक यू मैम। बस ये तो कॉलेज आपका है, मैं तो बस एडवाइजर हूँ और उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। So thank you मैम। And so I'll take only 3 minutes, 4 minutes, that's all. Okay. Because my idea about the Kumbh, and I thank two important personality before I'm going into it. One, Ankit. Ankit is my student and the Srishti's teacher also, and he has groomed Srishti and all the teachers from the college. Thank you, Ankit. Ankit was the first president when we started this GSPS. So it's another connection with Ankit, but unfortunately he also did not connect us so many times. So it is a life, and life is going on. So, and the second is Seema, Dr. Seema from Samlal Evening College. She has given me a wonderful personality to connect. I was there, and Indira Gandhi National Art, because I presented one paper on Siddhis there, Africans in India, but the old building. But I never been the new building. So sir has given us a wonderful chance to go and connect again IG's CNA. So it's a really fantastic that with one invitation, sir has joined us, and this is a memorable idea. Why memorable? Two things. Firstly, tomorrow the Kumbh is going to kick off, and no, suddenly it was happened. It was not like manifested that we are going to talk on Kumbh. So everybody, me and my moderators knows these things. So it was not manifested. It was just happened, and really, it's a truly. And I did not recollect कि 13th को ही आके कुंभ शुरू हो रहा है. So really, and the thing is, both are the guest of honor and the speaker are from BHU, the land where the Kumbh is going to be start. So really, it's a fantastic. And Srishti, one of my sleeper cell member, that means the GSTS member with your university also, Vaishnavi Mishra. So and she's doing MA instead of doing from Delhi University. She joined at JNU, at BHU. So why sleeper cell? Because I have so many sleeper cell, and you also going to become sleeper cell in 2 or 3 episodes, because nobody had turned up and joined us. That is the major problem, because for the 2 or 3 episodes you people join, and after that you become sleeper cell. But sleeper cell is a very good thing. When we जब हमें कभी जरूरत होती है तो आप लोग जग जाते हैं. तो thank you Vaishnavi for joining us from BHU again, MA. And the second important thing is the school, JNB school, the BHU as a college, Mahila college, DU as a university, and INGCA as a big government organization. So look, this is the main
intent and aspiration of the National Education Policy 2020. So somehow we are doing from the school level to a governmental organization, and so really my moderators and Samuel Evening College is doing a wonderful work. So, and sir, about the Kumbh, I don't have more to say because after Srishti wonderful presentation, after you great connect to the Kumbh. But yes, right now I'm teaching Africa because I'm in the Department of African Studies. So I try to not involve in the Indian history, though the blood is Indian. So, but in the Africa also, there are so many important festivals like the Kumbh, like Grand Mangal of Tuba in Senegal, Timkat in Ethiopia, and Lamu Melind in Kenya. So we are having in Africa, we are having so many these kind of huge festivals, but not the population wise and the length wise, but Africa also having, because India and Africa had a very great and long connection. Everybody knows about this. So when we sir told me about that, what about the Kumbh? Obvious, no doubt, no question on Kumbh, but we can spread the sir like spread in Singapore, Thailand, Malaysia. So I can spread this Kumbh to the Africa. So we connect so many continents like this. Thank you very much. Really, it's a wonderful deliberation of 5 days. We are very confused whether we have moved further or not with this GSTS 200, the GSTS. But the last day, 5 to 6, I did not repent anything, because this is the stronger than the cup of coffee with a few friends. It's our true inspiration. So thank you everyone, from my postgraduate student, my graduate student, MPhil, PhD, and scholars from the schools, colleges, and my old college, Samuel Evening College, and especially my moderators who give me this pleasant idea. But we have to work hard to reach another milestone 250, because we have no support from so many corners. We are trying to survive. But thank you. This is really a wonderful idea. And for this, I congratulate my moderators and Ankit, the first president. And again, the star of the day, Miss Srishti.